रुक जाए या ये बटन आपके ये ना दूसरा क्या करें? करें शुरू? दोस्तों शुरू करें। हमने आपके लिए बनाया भी है तो सहूलियत रहेगी आपको, लेकिन आपके दोस्तों को ईमेल कर दिया जाएगा। Friends, let's start, shall we? I'll, as usual, do in English and then Hindi. Normally I do Hindi first. Friends, I want to say at the outset that the grant of premature release to the convicts of Bilkis Bano case is a stain. Friends, I want to say at the outset that the grant of premature release to the convicts in the Bilkis Bano case is a stain on this government, a stain whose legacy can never and will never wash off. No doubt, the matter being sub judice will be decided in due course by the apex court. And we are here not going into legal merits, arguments and contentions. But the bar of public opinion and public conscience is no less important as the court of the people. In that context, in that court of the people, in that bar of public opinion and public conscience, I say with firmness and respect that it is repugnant, reprehensible, and revolting that an elected government in a democracy chose to release rape convicts in such a casual and cavalier manner. Friends, the reason for the press conference is that in the recently filed counter affidavit in the apex court, which has now come in the public domain, shocking revelations have come to light. First of those is that it is now clearly established by way of the affidavit that it was the Modi government, the central government, which gave its concurrence and approval for the release of the individuals convicted of gang rape, involving pregnant woman, 3.5-year-old child, and members of her hapless family. Release was ordered, ironically, on Swatantrata Divas, 15th of August this year. And since then, the central government, I'm now talking of the central government, not the Gujarat government, has maintained a studied and deliberate silence on the release of these criminals. Something which has drawn stinging criticism globally and in India, and it is now for the first time that the counter affidavit reveals that, quote unquote, the central government gave concurrence and approval for their release. That also happened after a delay of several months and weeks, when the Honorable Supreme Court desired the central government, and in particular the Home Ministry, to put on record this position. Secondly, this document, now in the public domain, reveals that this was stoutly objected to, not only by the prosecuting agency CBI, this is very important, the prosecuting agency in the case, in that sense, is supposed to have the primary control of the case, the understanding of the case, the sensitivity of the case. CBI opposed it, and the special judge also did not agree and opposed it. This second vital fact was also suppressed till
the Modi government was forced to file this affidavit in the apex court. Friends, despite the clear and clumsy attempts, the deliberate clumsy attempts to justify this embarrassing, to delay and to suppress this embarrassing and demeaning action, it is clear that unfortunately the sole object of this horrendous act was a raw political object. I want to underline 4 facts. Some of you know about it, but it is important to underline and repeat. First, the panel which ordered their release, it is quite amazing in writing, cited justifications like, quote unquote, convicts belonged to Brahmin and Sanskari families. Now, if this can be a reason, I don't know which system of order and rules we are following. It then said that they may have been intentionally framed, forgetting that they are convicts convicted by a court, intentionally framed. It does not mention the crucial, remember, this has come in affidavit now, but the panel does not say that the MHA, the Ministry of Home Affairs, has granted approval for premature release. This is not said by the panel. It is suppressed. It is tried to be hidden. Second, and everything has to be seen holistically, contextually, not piecemeal and isolation. As you know, they are released on Independence Day this year, and shortly thereafter are felicitated by members of organizations who profess close association with the ruling party. Persons associated with the ruling party, both in Gujarat and in the center, in fact made public statements, though feeble, to try and justify this unjustifiable and craven decision. Third facet, these are convicts released with identical en masse blanket approaches, which shows that everybody is painted with the same mechanical brush. So there are no facts distinguishing this gentleman from this gentleman. There is no fact distinguishing this gentleman from this gentleman. It's a blanket mechanical order, no application of mind to individual cases, individual culpability, individual charges, individual acts or omission. Was this, I ask you, an obscene formality which the panel did? Fourthly, friends, the threat posed by the release, at that time imminent release of these people, the threat posed to the life, liberty and security of Bilkis Bano and her family has not even been considered. I can understand that you consider the threat posed to him and then you reject that. I can consider that you say that, look, this is a threat posed to me, but then we don't think it is a real threat. It is not even considered. It was in fact the direct and serious nature of the threats which had in a sense been already underlined by the Supreme Court when you remember this case was transferred from Gujarat to Maharashtra. Even the trial of the case is transferred from Gujarat to Maharashtra, but when it comes to release, this prime consideration is not a factor or a facet for either the panel which directed their release or the central government which gave concurrence and approval. All of this, friends, establishes beyond a shadow of doubt, slightest vestige of doubt, that this is done with full concurrence, involvement, participation, in fact, I'm sorry to say, full encouragement from the central government, the Modi government. Friends, may I end by saying, we have raised already in what I have said, questions are inbuilt. But let me specify 3 questions in a more formalistic mode. They are already implicit in what I have said. 1, why did the Modi government, the central government, decide to grant
this concurrence and approval despite objection of senior officials, prosecuting agency and the trial judge. Why is the question, was this preferential treatment given? And it is no ordinary crime. It is reprehensible, horrific and heinous. 2, this is a question to the Modi government through the public domain, through the press. Has the government decided to pardon all convicted rapists and child murderers who have served a certain period? With this precedent, in a reprehensible gang rape and child murder case, how will you deal with other such demands in other similar crimes in other parts of the country? Will the Modi government tell us that? Or was this a special one-off for a special blue-eyed category of convicts? And third, will such treatment which was accorded to these convicts post-release, will it be accorded to all, or is it a limited time period treatment depending on elections coming up? Friends, I don't want to use harsh words, but I am compelled to say this much at least, and I am ending. There are many compromises in politics, no doubt. But the BJP has made the greatest compromise of all. A sacrifice, this is the compromise the BJP has made. A sacrifice of the last shred of conscience that separated them from their craven and venal elements who prize solely their own political survival over everything else. दोस्तों, मैं संक्षेप में आपको हिंदी में बताना चाहता हूँ कि जो ये बड़ी विडंबना है, बड़ा विचित्र बात है, एक बहुत बड़ी आडंबर है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सीख दी जाती है आपको, दिन प्रतिदिन स्लोगन बनाए जाते हैं, जुमले कसे जाते हैं, और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बलात्कारियों को जेल से छुड़ाओ। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसी विडंबना है, ये कैसा आडंबर है। जिस प्रकार से रिहाई जल्दी दी गई है उन लोगों को जो अभियुक्त नहीं हैं, एक्यूज नहीं हैं, जो दोषी ठहरा चुके हैं कोर्ट कचहरी द्वारा, अपील्स के बाद, अंतिम निर्णय द्वारा, उनको रिहा किया गया है। ये एक ऐसा काला धब्बा है जो इस सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कभी नहीं धुल सकता। ये भर्त्सना योग्य है, ये घिनौना है, ये घृणात्मक है कि कोई भी चुनावित सरकार एक लोकतंत्र गणतंत्र में इस प्रकार से अपने एक अधिकार क्षेत्र जिसको वो मानती है कि उसका अधिकार क्षेत्र है, उसका दुरुपयोग करके ऐसा काम करे। ऐसे बलात्कार वाले लोग जो कन्विक्ट हो गए हैं उनको रिहा करें। ये हम आज इसलिए आपके समक्ष आए हैं क्योंकि 2 दिन पहले कोर्ट के कई आदेशों के बाद जो हलफनामा केंद्र सरकार ने, अब मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, दायर किया है उच्चतम न्यायालय में, उसमें बड़ा स्पष्ट पहली बार ये कहा है कि हमने यानी मोदी सरकार ने ये सहमति, ये हामी भरी है कि इन लोगों को जो एक सामूहिक बलात्कार के विषय में कन्विक्टेड हैं, अभियुक्त नहीं मैं दोहरा रहा हूं, जिसमें 3-3.5 वर्ष की आयु के बच्चे मारे गए हैं, गर्भवती महिलाओं पे आघात हुआ है, उनको हम रिहा कर रहे हैं। इसकी सहमति, इसकी अनुमति, इसका कंकरेंस, इसकी हामी केंद्र सरकार ने दी है। ये आप जानते हैं कि ये रिहाई एक, ये भी अपना एक विडंबना है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हुई और विश्व भर से भर्त्सना और घृणा हुई इस बात की, भारत में, अखिल भारतीय स्तर पे और विश्व भर में। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से बिल्कुल चुप्पी साधी है मोदी सरकार इस विषय में, और ये कभी नहीं कहा कि केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति और हामी भरी थी।
ये तो अलग बात है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत वो बाध्य हो गए, एक हलफनामा करना आवश्यक था, उसमें ये पहली बार निकला है। इसका मतलब है इसको छुपाने का, इसको लुकाने का और छुपाने का प्रयत्न किया गया है, ढांकने का। दूसरा पहलू, इन्हीं हलफनामों से और इन्हीं कागजात से ये अब अवगत होता है कि सीबीआई जो मुख्य प्राथमिक प्रोसिक्यूटिंग संस्था है, और आप जानते हैं प्रोसिक्यूटिंग संस्था का अहम रोल होता है, वो सबसे ज़्यादा समझती है केस को, सबसे ज़्यादा नियंत्रित वही करती है केस को कानून के द्वारा हमारे सिस्टम में। वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी सीबीआई ने इसका विरोध किया, ये भी खुलासा अब हुआ है पहली बार। तीसरा, जैसा आपको बताया नहीं क्या 15 अगस्त के पहले, तीसरा इसका भी खुलासा अब पहली बार हुआ है कि जो स्पेशल जज जो ऐसे मामलों की ट्रायल करते हैं, सुनवाई करते हैं, तथ्यों को लेते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उन जज ने भी इसका विरोध किया। ये सब चीजें आपसे अभी हलफनामे तक छुपाई गई हैं। काले करतूतों को छुपाने का प्रयत्न मोदी सरकार ने किया है। ये दुर्भाग्य की बात है, भत्सना की बात है कि इसके पीछे एक और सिर्फ एक उद्देश्य था, काला उद्देश्य, एक बड़ा नंगा राजनीतिक उद्देश्य। ये नंगा राजनीतिक उद्देश्य 3-4 चीजों से बड़ा स्पष्ट रूप से बाहर आता है, सामने आता है। पहला, जिसका आप संज्ञान सबको है, जिस पैनल ने, प्रदेश सरकार के पैनल ने ये कहा कि आप रिहा कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो बलात्कार के कॉन्विक्ट्स हैं, अभियुक्त नहीं है, उसने लिखा है, ये विचित्रता नहीं, ये एक चरम सीमा है लिखित रूप से, कि ये लोग कोट अनकोट ब्राह्मण और संस्कारी परिवार के लोग हैं। ऐसे शब्द बलात्कारी कॉन्विक्ट्स के लिए इस्तेमाल करना। और फिर लिखा है कि शायद ये कोट अनकोट इंटेंशनली फ्रेम्ड हैं, जानबूझकर इनको फ्रेम किया गया, इसकी संभावना है। अरे भाई, इसकी संभावना है तो क्या आप भूल गए कि कोर्ट कचहरी में और अपील में उसके बाद इनको कन्विक्ट किया गया है ट्रायल के बाद। इंटेंशनली फ्रेम्ड, मे हैव बीन इंटेंशनली फ्रेम्ड, ये कहां से आ गया? दूसरा पहलू, क्या आप सबके साथ ये करते हैं कि ऐसे बलात्कारी जो 10-14 साल बिता चुके हैं, उनके तुरंत निकलते ही उनकी आवभगत हो रही है, उनको जो अंग्रेजी में कहते हैं फेलिसिटेशन समारोह हो रहे हैं, उनको हीरोज की तरह स्वागत किया जा रहा है। और उसके बाद जब ये प्रश्न उठा तो मीडिया में कई उन लोगों ने जो सीधा संबंध रखते हैं सत्तारूढ़ पार्टी से, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, उन्होंने इसका समर्थन किया, अपने आप को सही बताने का प्रयत्न किया। तीसरा, ये महत्वपूर्ण है, कोई प्रयत्न नहीं किया गया है कि इतने सारे लोग थे, 5, 7, 10 लोग, उनको अलग अलग रूप से कि इस व्यक्ति को क्यों छोड़ें, इसकी गलती ये है या ये गलती नहीं है, या इस महिला को क्यों छोड़ें, इसकी गलती नहीं है इस कारण से, या इस व्यक्ति को क्यों छोड़ें, यानी व्यक्ति विशेष विश्लेषण का प्रयत्न भी नहीं किया। एक सामूहिक रूप से आम आदेश दे दिया कि इन सबको छोड़ दिया जाए। अरे भाई, सामूहिक रूप से आम आदेश देने का मतलब है कि आपने अपना दिमाग लगाया नहीं व्यक्ति विशेष केसेस में। इनके कारण छूटने के या नहीं छूटने के मेरे से अलग होंगे, और मेरे कारण छूटने नहीं छूटने से इस महिला के आगे से फर्क होंगे। तो हम सबको सामूहिक रूप से एक ही पेंट ब्रश से रंगित करके आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? ये तीसरा एक पहलू है। चौथा, आपको याद है कि जब ट्रायल हो रही थी उस वक्त से उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हमको बहुत ज्यादा सोच है बिल्किस बानो, उनके परिवार की सुरक्षा और सिक्योरिटी के बारे में, और उस वक्त इस आधार पर गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरण किया गया इस केस का। और अब आपने जब कन्विक्ट कर दिया और जब रिहाई की तो पैनल ने कहीं लिखा ही नहीं इसके बारे में। फिर वही कि आपने अपना दिमाग इस विषय पे अप्लाई किया कि नहीं? बिल्कुल नहीं किया कि क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ये क्या कानूनी है? कि मैं ये मान सकता हूं कि आप कहें कि
इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं, आपने अपना मस्तिष्क और दिमाग इस पे लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि आपका शुरुआत से मंतव्य और गंतव्य पूर्व निर्धारित था, द्वेष की भावना से कि भाई इनको रिहा करना ही है, येन केन या प्रकारेण। अंत में मैं ये कहूँगा कि जो मैंने बातें कही हैं उसमें प्रश्न निहित हैं, बट 3 प्रश्न मैं फिर भी आपके समक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ मोदी सरकार के लिए, समाज के थ्रू, मीडिया के थ्रू। एक, कि बड़े बड़े संस्थाओं और व्यक्तियों के विरोध के बावजूद, सीबीआई के विरोध के बावजूद, स्पेशल जज के विरोध के बावजूद, किस कारण आधार से मोदी सरकार ने अनुमति दी इनकी रिहाई की, ऐसे घृणात्मक क्राइम के विषय में? क्यों, कैसे? दूसरा, क्या सभी बलात्कारियों से ऐसा ही बर्ताव करने का निर्णय ले लिया है मोदी सरकार ने? ये नया बलात्कार के क्राइम का एक नया स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया गया है सरकार ने? और तीसरा, अगर ये सिर्फ इस केस के लिए है तो इस केस में क्या विशेषताएं हैं जिससे इस केस में आपने ये अपनाया है सिद्धांत, कसौटी? और क्या ऐसी स्पेशल विशेष कसौटी चुनाव से सिर्फ प्रभावित होती है और सिर्फ चुनाव से संबंध रखती है? मैं अपनी बात अंत करूंगा ये कहकर, एक, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि उच्चतम न्यायालय इसमें निर्णय लेगा, ये सब जुडिस मामला है, इसलिए हम इसके मेरिट्स के ऊपर कोई टिप्पणी या कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, न देना चाहते हैं। लेकिन हम हमेशा मानते हैं कि एक सामूहिक समाज और जनता जनार्दन का जो मत होता है और जो जनता जनार्दन वाला कोर्ट कचहरी होती है, जो आत्मा वाली कोर्ट कचहरी होती है, जो करुणा वाली कोर्ट कचहरी होती है, उसमें, उस कसौटी में ये सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, हार गई है। और यद्यपि हम सब समझते हैं कि राजनीति में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, गलत रूप से समझौते किए जाते हैं, लेकिन ऐसा घिनौना समझौता जो बीजेपी ने राजनीतिक उद्देश्य से किया है, अपनी आत्मा को छोड़कर, अपनी कोई भी करुणा को हटाकर, सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों से उन बलात्कारियों के साथ जो समझौता किया है, ये कड़े से कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करें तो भी वो कम होगा। धन्यवाद। नहीं, एक मिनट इसको खत्म कर लें, कुछ प्रश्न हो तो उसके बाद। क्या निर्भया? अच्छा अच्छा, नहीं तो आपका प्रश्न क्या है निर्भया पे? हाँ, नहीं, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तानी जनता का आज हृदय इतना कठोर हो गया है कि निर्भया के बाद कोई असर नहीं है। मैं बिल्कुल असहमत हूँ। हमारी संस्थाएं, हमारी आत्मा, हमारा जनता जनार्दन, हमारा आम आदमी इससे उद्वेलित है, इससे चिंतित है, इसको घृणा से देखता है। अब ये अलग बात है कि आपके पास बहुमत है तो आपने समझ लिया है कि बहुमत की धौंस का मतलब है कि जितने भी मानव अधिकार हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनको हम कटघरे में रख के, उनको हम एक खड्डे में डालकर आगे बढ़ेंगे। ये एक लोकतंत्र और गणतंत्र की विकृति है। ये बिल्कुल जो मन में और जो पेट पे और जो हृदय पे लात लगती है, ऐसे गलत घृणात्मक कामों से, घिनौने कामों से वो लंबी होती है, मस्तिष्क पे रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भारत इस बात से, भारत की पूरी संस्कृति इसके विरुद्ध है, ऐसी चीज़ों के। भारत की पूरी सोच, भारत की पूरी अस्मिता, भारत की पूरी पहचान इसके विरुद्ध है।
देखिए, आपने कई प्रश्न उठाए, कुछ आपके प्रश्नों का उत्तर उच्चतम न्यायालय देगी। आज भी लगा था केस, मैं खुलासा कर दिया है, पहले भी वापस कर रहा हूँ कि मैं भी उस केस में पेश हो रहा हूँ, इसलिए मैं केस के मेरिट्स पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपने कुछ कानूनी प्रश्न उठाए हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उनमें से एक बड़ा रोचक बात है, दावा था प्रत्याशियों का जिनके लिए मैं भी पेश हो रहा हूँ, महुआ मित्रा की पिटीशन में मैं अपेयर हो रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। उनका यही एक याचिका थी कि केंद्र सरकार, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है, का भी एक रोल है और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमको बताइए, हमारे हिसाब से उनकी कोई अनुमति ली गई कि नहीं पता नहीं है हमको। ये एक याचिका थी शुरुआत से। तो अब मालूम पड़ा है कि सीबीआई ने विरोध किया, केंद्र सरकार ने कहा दे दो। नंबर 2, क्यों किया ये आप मेरे से कैसे पूछ सकते हैं? मैं तो आपके साथ जुड़ा हूं, यही प्रश्न आपके जरिए पूछ रहा हूं। अब इसमें इन्होंने सिर्फ ये कहने के कि हमने पूरा व्यापक समावेश देखकर एक पूरा लंबा चौड़ा सोच के हम, क्योंकि केंद्र सरकार हम ये अधिकार क्षेत्र रखते हैं, हमने किया है निर्णय, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उस हलफनामे का उत्तर आएगा, प्रत्युत्तर आएगा। लेकिन ये गैर कानूनी है, ये तो निश्चित है मेरे मानने में, और ये जल्द से जल्द उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा, ये हम आशा और विश्वास रखते हैं। और हम समझते हैं कि एक भी कारण नहीं दिया है केंद्र सरकार ने, सिवाय इसके कि मैं केंद्र सरकार हूं, मेरा अधिकार क्षेत्र, मैंने दिया आपको अनुमति। आप ये बताइए मेरे को कि बलात्कार के ऑफेंस पे, बलात्कार को छोड़िए, छोटे छोटे ऑफेंसेस में कभी ऐसा हुआ है कि ये सीबीआई मना करें, आप स्पेशल जज हैं, आप मना करें, और मैं केंद्र सरकार कहूँ कि बलात्कार के ऑफेंस में एक रूप से सामूहिक रूप से रिहा कर दीजिए? इसमें तो कॉमन सेंस चाहिए, इसमें तो कानून की ज्ञान भी नहीं चाहिए ज़्यादा। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ विलंब होता है, ये अलग बात है कि अभी कुछ समय लगेगा, ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं अभी तक उच्चतम न्यायालय में लंबित है इसलिए कोई निर्णय नहीं आया है। लेकिन जो मैंने कहा कि जो जनता जनार्दन का कोर्ट कचहरी है, जो आघात होता है हमारी सोच, आत्मा और हमारी करुणा में, वो बहुत दूरगामी होता है, और उससे थोड़ा भय कभी न कभी सरकार को होना चाहिए। और एक याद रहे, जैसा मैंने कहा, एक व्यक्ति के बारे में भी व्यक्ति विशेष कुछ नहीं कहा गया है। ये लंबे हैं, मैं चौड़ा हूँ, ये बूढ़े हैं, मैं यंग हूँ, इनको ये दुष्प्रभाव होगा, ये नहीं होगा, तो समझ आता है कि भाई 11 में से एक आदमी को छोड़ दो। 11 के 11 को बिना कारण के, बिना व्यक्ति विशेष छोड़ दे रहा, तो अपने आप दिखाता है कि आपने मस्तिष्क लगाया नहीं अपना। जी हाँ, हाँ। इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए, होगा कि नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पे कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो कि अभी भी अकारण है, आज हलफनामे के बाद भी अकारण है, तो उसका कारण तो मैं तो एक ही सोच सकता हूं कि हमेशा सस्ती राजनीति और नंगी राजनीति खेलने के कई उदाहरण हुए हैं पहले। इसमें एक और श्रृंखला में आप जोड़ दीजिए। वो होता है कि नहीं होता, मैं मानता हूं कि हमारी जनता जनार्दन बहुत संतुलित भी होती है, बहुत समझदार भी होती है, बहुत दूरगामी और सोच की भी होती है, एक विजन भी होता है उनका, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपका प्रयत्न तो है क्लियरली कि इसका कोई फायदा उठाया जाए। I'm very happy you told me. I should have included that in my press conference. When did he say that? I don't know, but so I would that answers my question. Kindly add it as my press conference, what your question is. A sitting minister campaigning in Gujarat elections says that he finds nothing wrong in releasing 11 group convicts for gang rape and murder of pregnant women and children. I leave it to judge for yourself. I leave it to judge the last question about political motive. This has happened that time also, on 15th August, when they were released on 17th or 18th. But now you are expanding it to central cabinet ministers. I would condemn it in the strongest word. It is okay, you have a majority. It doesn't mean that you can do what you like. It doesn't mean that this is a lawless world. It doesn't mean this country has no conscience. It doesn't mean there is no rule of law. It doesn't mean that there is no compassion. आपने जो अभी कहा वो एक एक शब्द जो मैंने कहा है अपनी प्रेस वार्ता में, उसका पुष्टिकरण करता है। कितना घिनौना है कि केंद्र के मंत्री चुनाव के सस्ती राजनीति, नंगी राजनीति के आधार पे, उसके उद्देश्य से
ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता कि एक सामूहिक बलात्कार के ऑफेंस में जिसमें 3-3.5 आयु के बच्चे, वर्षों के आयु के बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की हत्या हुई हो या बलात्कार हुआ हो, उस विषय में आप छोड़ दें, रिहा कर दें, उसको मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि इसमें आज भी हलफनामे के बाद अकारण है। कारण सिर्फ एक है, नंगी राजनीति, सस्ती राजनीति। उसका पुष्टिकरण आपने किया है अभी। राजनीतिक कैंपेन के दौरान एक सिटिंग मंत्री ये कहते हैं, इससे ज़्यादा घिनौनी चीज़ क्या हो सकती है? क्या इस सरकार की पहचान ये है? क्या इस देश की अस्मिता और संस्कार ये है? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जज करने के लिए, निर्णित करने के लिए। ओके, या No, how? There is no question of reacting to an individual court decisions come today. This is a system, a process of law, and this is Mr. Khalid's full right to challenge or not to challenge. An appropriate court will decide this. We have nothing to say. It is based on individual evidence. But certainly, you have to have faith in the process of law. You win some, you lose some. Other courts may hold this way or that way. It is for him to exercise his rights. There is no question of me from this podium going into the individual merits of an individual case. Okay, thank you.